Good evening, everyone, and good morning. Very nice to be here once again on my channel. I'd like to welcome all my viewers who will be watching this video. And I'm sure you are blessed by the previous video that I have uploaded. आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे, कि मैं आपके सामने एक और संदेश के साथ हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करता है, इसलिए जो हूँ मैं संदेश परमेश्वर के द्वारा मुझे तैयार करने की शक्ति और बुद्धि परमेश्वर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। And today's message I've taken from Joshua chapter 9, and we are going to study how deception comes into the camp of Israel through Gibeonites. गिबोनाइट्स के गिबोन के थ्रू किस तरीके से उन लोगों ने यहोशू और उसके लोगों को कैसे उनको झुटलाया और उन्हें ये मानने पे मजबूर किया कि वो उनके पास आए हैं सहायता के लिए। आज का मैसेज के लिए जिससे पहले हम जाएं, आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं आज के संदेश के लिए। तो मेरी सहायता कर, मुझे अक्ल और बुद्धि दे। एक एक शब्द जो मैं बोलूं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। मैं तो पापी हूँ, लेकिन तू मेरे पापों को क्षमा करता है और मुझे वचन देता है जो कि तू चाहता है कि मैं लोगों में इसको बांटूं, साझा करूं और लोग इससे आशीषित होने वाले बने। जो जो इसको सुने, उनकी जो भी परेशानी है, दर्द है, दुख है, बीमारी है, उनको तो चंगाई दे, ताकि वो तेरे विश्वास में आगे बढ़ सके। यही हमारी प्रार्थना है। मेरे पापों को क्षमा कर। ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे मैंने बोला कि हमारा इसका मैसेज जो है, ये अच्छा मैसेज है कि किस तरीके से हम लोग धोखा खा जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के ओर जो है हम आ, ध्यान नहीं देते, उससे पूछते नहीं है, और इसलिए हम धोखे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ गिबेनाइट्स डिसेप्शन, Joshua chapter 9 verses 1 to 27. Now we want to know who are these people, Gibeonites. And these people are the one who are coming from a very close by, and they come to the camp of Gilgal to Joshua. And Joshua, without realizing, he thinks they have come from far away country and they need to help them. And he's been deceived by these people, Gibeonites. So we are going to study that for today. आज के हमारा जो है गिबोन के बारे में हम सीखेंगे किस तरीके से इन लोगों ने आके जोशुआ को धोखा दिया। यहोशू का 9वें अध्याय में हम देखेंगे Gibeonites were not far from a far country. They were from a very close country. As I was going through the map, I could see that Gilgal and Gibeon is not very far. They were the next area to be invaded. Now they had heard that Joshua, how he defeated Jericho and Ai. And they were scared that Joshua will bring the Israelite army and defeat these Gibeonites. So therefore, they were scared. So they thought they will deceive Joshua by changing their appearance. By the time Israel and Joshua learned who they were, it was too late. No, Joshua had already decided to keep them in his camp. And on the third day, he comes to know that they're coming from a very close city. But Joshua had already signed a peace treaty with them, that he will help them and they will stay with them. Joshua said that they could not be killed, but they could be made slaves to carry water and cut wood. Now Joshua decided that since they had taken an oath and they had kept them with them, so they will not punish them. If they punish them or if they kill them, God is going to punish them because of the oath that they have taken to keep them there. So he said they are going to work as slaves. Since they have deceived them, they will carry water and cut wood for them.
for the Israelites. So this was the treaty which was signed, and when they were deceived, they had to keep them by keeping their promise what they had made in the name of God. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहोशू जो है इस चैप्टर 9 में हम क्या क्या है, किस तरीके से इनको धोखा दिया गया। गिबोनी लोग देश से बहुत दूर नहीं थे, ओके, ये बहुत ही पास रहते थे। और आप अगर बाइबल का मैप देखेंगे तो यर्दन के किनारे जो गिलगाल जगह है उससे दूसरे साइड में ये लोग रहते थे। आक्रमण किए जाने वाले अगले क्षेत्र थे। नहीं, डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहोशू इनके देश बीच के क्षेत्र में इनको भी हरा दे। जब तक इसराइल और यहोशू को पता चला कि वे कौन थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उन्हें बगैर परमेश्वर से सलाह मांगे उनको रख लिया, उनके साथ शांति की ट्रीटी भी करी, एग्रीमेंट किया, संधि कर ली। और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये तो पास में ही रहने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है। जब हम परमेश्वर के पास सलाह लेने नहीं जाते तो हमारे पास जो दुश्मन है वो अपनी चालें चलता है, जिस तरीके से गिबोनियों ने यहोशू के साथ करा। यहोशू ने कहा उन्हें मारा नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें पता लग गया तीसरे दिन ही ये तो पास से आए हैं और ये तो आ गए हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी इन्हें रख लिया, संधि भी कर ली है, अब हम इन्हें पानी ढोने के लिए रखेंगे और ये लकड़ी काटने का काम करेंगे, इस तरीके से ये हमारे गुलाम बन के रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से सलाह नहीं लेते तो वो धोखे में आ जाते हैं और धोखे की वजह से उन्हें बहुत ही बड़ा सहना पड़ता है दंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉकिंग बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रेंथन योर एनिमीज, ओके, walking by your own understanding, they were relying on themselves. They did not think that they should ask God, and therefore the enemies became strong. Now it came about when all the kings who were beyond the Jordan in the hill country and in the lowland and on the coast of Great Sea toward Lebanon, the Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, and Jebusite heard of it, that they gathered themselves together with one accord to fight with Joshua and with Israel. These people, all these tribes are just all around the camp of Gilgal. Israelites were living there. So they thought that let's all get together. And you can imagine they're coming from Lebanon. They are on the coast of the Lebanon, Great Sea. And they are Hittite enemies, Amorite, Canaanite. Now you can see Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, Jebusite. 6 tribal people, 6 countries all around Israel. They want to defeat Joshua by getting together, but they want to know how to get to them. And therefore, they were making a false appearance to fight with Joshua and Israel, so that all these people will get together and they will be able to defeat. But where God is, they cannot defeat. They are not successful when you try to go against the people of God. When we look at here, these people, यर्दन नदी के पश्चिम के हर एक राजा ने इन घटनाओं के विषय में सुना। हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिवी, युबीसी लोगों के राजा थे। वे पहाड़ी प्रदेशों और मैदान में रहते थे। वे लेबनान तक भूमध्य सागर के तटों के साथ भी रहते थे। वे सभी राजा इकट्ठे हुए, उन्होंने यहोशू और इजराइल के लोगों के साथ युद्ध की योजना बनाई। अब इनका इरादा ये था कि ये सब के सब, ये कौन थे? अन्य जाति के लोग थे। ये कौन थे? ये 6 ट्राइब्स हैं, जो 6 राजा हैं आसपास इजराइल के। इन्होंने सोचा कि इजराइल के चारों ओर हम फैल जाएंगे और यहोशू को और इजराइलियों के साथ लड़के
हम युद्ध की योजना बनाएंगे। लेकिन युद्ध की योजना बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वहां पे कैसे है। यहोशू ने ऑलरेडी यरीहो शहर को हराया था, उसकी दीवारें ध्वस्त हो गई थी, और एआई जो शहर था उसको भी उन्होंने हराया दूसरी बार जाके। तो ये लोग को मालूम था कि इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी योजना जो इन्होंने तैयार की थी कि किस तरीके से यहोशू और इस्राएलियों से लड़ाई की जाए। हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा पॉइंट बता रहा है, many who walk by sight will be deceived through false appearance. Okay, now when we look at here, we are deceived by the false appearance. Now, a person has, he can deceived by putting a false appearance, by changing the clothes, by doing something great, something that people are not going to, not able to recognize them. And it says, when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they also acted craftily, intelligently, very cleverly, and set out as envoys. They were coming there as envoys, as ambassadors, and took worn out sacks on their donkeys and wineskins worn out and torn and mended. Now they are coming on the donkeys. They have put the torn sacks on the back of the donkeys, and they are carrying the wineskins which are worn out. Okay. And then they have torn dust. Then they have the patched sandals. Okay, on their feet. They have the clothes on themselves which are worn out and dirty. And they have the bread which has moles. Now, when we look at here, all these things, they have done such a great thing by having the deception, by making appearance, bringing the donkeys, putting the old sacks on them. They are bringing the bread, which is having all the yeast and mold on that, and it is all crumbled, dry. You cannot eat it. Then the sandals are all worn out. Then the clothes are also worn out. And these are some of the things, they were doing. And then when we look at this, what a way of Satan trying to use here a way for appearance for these people, how they should change themselves to defeat who? God's people. Now, then they say, they make them believe by showing all these things that they have come from a far land. We have come from a far country. Now, therefore, make a covenant with us. That means we are coming from a far country. You allow us to stay here and you make a covenant with us, an agreement that we can stay with you and you will help us. So they have totally, they were successful in putting a false appearance coming before Joshua. And Joshua was totally deceived by these people. See how Satan does the work. When Satan is doing this work, when we look at here, we are deceived. Now when we look at here, गिबोन के लोगों ने उस ढंग के बारे में सुना जिससे यहोशू ने यरीहो और ए को हराया था, इसलिए उन्होंने इज़राइल के लोगों को धोखा देने का निश्चय किया। इन्हें मालूम था कि इन्हें ऑलरेडी इन्होंने हरा दिया. They have already defeated Jericho and Ai. They wanted to deceive them. And they wanted to defeat them also. Deceive and defeat. हराना भी मांग रहे थे और धोखा भी देना मांग रहे थे. और इन्होंने कहा, इज़राइल के लोगों को धोखा देने का निश्चय किया, जिसमें वो सफल भी हो गए. उनकी योजना ये थी कि उन्होंने दाख मधु के उन चमड़े के पुराने पीपों को अपने जानवरों पर लादा. पहले जो था, चमड़ों के जो थे वो पीपे होते थे जिसमें कि वो पानी भी रखते थे और उसमें दाख मधु भी रखते थे, और उनको उन्होंने पुराने वाले लिए, इनको दिखाने के लिए, देखो हम कितने दिन से चलते आ रहे हैं, ये हमारे कपड़े भी पुराने हो गए
हमारे पीपे भी पुराने हो गए, और ये जो पीपे हैं ये फटने वाले हो रहे हैं चमड़े के। और उन्होंने जानवरों के ऊपर लाद दिया। उन्होंने अपने जानवरों के ऊपर पुरानी बोरियां डाली, दिखाने के लिए कि वो बहुत दूर से आए हैं, और जिससे ऐसा दिखाई पड़े कि वे बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं। लोगों ने पुराने जूते पहन लिए, उन पुरुषों ने पुराने वस्त्र पहन लिए, पुरुषों ने कुछ बासी सूखी खराब रोटियां भी ले ली। इस तरह वे पुरुष ऐसे लगते थे मानो उन्होंने बहुत दूर से यात्रा की हो। तब ये पुरुष इस्राएल के लोगों के डेरों के पास गए। ये डेरा गिलगाल के पास था। वे पुरुष यहोशू यहोशू के पास गए। उन्होंने उससे कहा, हम लोग एक बहुत दूर के देश से आए हैं। हम लोग तुम्हारे साथ शांति की संधि करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव विद यू पीसफुली, मेक अ पीस ट्रीटी विद यू। इतने ज्यादा इन्होंने अपने आप को तैयार किया। कपड़े उनके पुराने, जूते फटे हुए, और पीपे जो थे जिसमें दाख मधु थी वो भी पुराने लगा रखे। गधों के ऊपर उन्होंने पुरानी बोरियां डाल दी। रोटी वो सूखी ले गए जिसके ऊपर फंगस लगा हुआ था। और ऐसी खराब रोटी, बासी रोटी, ये दिखाई कि कितने दिन से पूरी तैयारी से गए थे। शैतान पूरी तैयारी से काम करता है, लेकिन खुदा के लोग धोखे खा जाते हैं जब हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। इन लोगों ने कहा, हमारे साथ संधि कर लो। यहोशू ने तब भी नहीं परमेश्वर को बोला। और यहाँ पे जो है उसने शांति की संधि जो है वो चाह रहे थे, ताकि ये इनके बीच में रह के इनके बारे में जाने, और फिर ये वापस उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों ने इन्हें भेजा है। उनको जाके बताएं इनके किस तरीके से रहते हैं, कैसे लोग हैं ये, किस तरीके से इन्हें हराया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि शांति की संधि कर लेते हैं, ताकि हम आपके साथ आराम से रह सकें। यहोशू को नहीं पता था कि ये शांति की संधि क्यों करना मांग रहे हैं। यहोशू इन्हें पहचान नहीं पाया कि ये किस तरीके के इन्होंने अपने आप को बदला, पूरा अपीयरेंस बदल दिया। They changed their whole clothing, the donkeys' sacks, they were old ones. They brought old bread, hard and dry, with fungus all over. What a preparation these people had. इन्होंने क्या तैयारी की कि इस तरीके से इन्होंने जूते भी पुराने पहने, पुराने चमड़े के, और ताकि लोग बिलीव कर लें। जब हम किसी चीज को ध्यान से नहीं देखते, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो हम धोखा खा जाते हैं। शैतान तैयार रहता है कि हमें धोखा दे, और हम धोखे में आ जाते हैं, जैसे कि गिबोनियों ने यहोशू के साथ किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके के लोग थे ये। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, many who walk by sight will be deceived through flattery. Okay. You're walking by sight. We are looking for these people. The men of Israel said to the Hivites, perhaps you are living within our land. These Israelites, they were trying to question them. I think you are living very close to us. But they made them to believe, no, we are not staying very close to you. We are coming from a far country. Perhaps you are living within our land. How then shall we make a covenant with you? You're living nearby. We cannot make covenant with you. That's the Israelites were telling. But they said to Joshua, we are your servants. The leader is Joshua. We are your servants. They're willing to become servants. Then said Joshua to them, who are you and where do you come from? Okay, this is something good that he's asking, from who are you, from where are you coming? And look at their answer, what they give. They said to him, your servants have come from a very far country because of the fame of the Lord your God. We have heard about your God. How they are tempting, deceiving Joshua. We have heard about your Lord God. We have heard about the fame, the defeat that you had in Jericho and Ai. You had defeated them. And therefore, after hearing all that,
we have come here. We have heard the reports of him and all that he did in Egypt. We have heard about the Moses also, how he was able to bring out the Israelites from Egypt. And all that he did to two kings of Amorites. And he says the two kings of Amorites, Bashan and Ashtaroth, Og and Bashan, they were killed by Israelites. He says, we have heard all these stories, and therefore we have come for a peace treaty with you. After telling them all this, now Joshua is beginning to understand these people know what kind of people Israelites are there and what kind of leader Joshua is there. And therefore, he is beginning to believe what these people are saying by putting a flattery to them. They are totally flattering Joshua, and he's able to listen to them. He is able to understand their points, the deception that they are doing, and they want the treaty, peace treaty with them so that they could be living with them. Sometimes, God's people have to suffer because of that. इज़राइल के लोगों ने इन हिव्वी लोगों से कहा, संभव है तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। इज़राइलियों ने कहा, तुम हमें धोखा दे रहे हो। संभव है तुम हमारे करीब के ही रहने वाले हो। द सेकेंड थिंग दे से कि तुम हमारे करीब के रहने वाले हो। They says you are staying very close to us. हम तब तक शांति की संधि नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं जान लेते कि तुम कहां से आए हो। They want to know everything about these Gibeonites. गिबोन के बारे में ये सब कुछ जानना मांग रहे हैं। हिब्वी लोगों ने यहोशू से कहा, हम आपके सेवक हैं। सेवक का मतलब जो आप काम हमें बोलोगे हम वो काम करेंगे। किंतु यहोशू ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? पुरुषों ने उत्तर दिया, हम आपके सेवक हैं। ये उनको अश्योरेंस दे रहे हैं, ये उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम तो पास के नहीं, हम तो दूर के लोग हैं और हम जो है तुम्हारे पास रहना मांगते हैं, हम तुम्हारे नौकर बन के रहना मांगते हैं। ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ से आए, ये कह रहे हम दूर से आए। उन्होंने ये नहीं बताया कौन से देश से आए। यहाँ पे पुरुषों ने उत्तर दिया, हम आपके सेवक हैं, हम एक बहुत दूर से देश से आए, बहुत दूर से आए हैं, हम तो पास से आए, देख लो हमारे पास क्या क्या है। जूते हमारे फटे हुए हैं, गधे पे हमारे बोरियां सारी पुरानी हैं, और हमारे जो खाना है वो भी सूखा हुआ है, कपड़े हमारे वो वॉर्न आउट हो गए हैं। तो आप इससे लगा लो कि हम बहुत दूर से कई दिन तक हम चलते आ रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। ओके, हम इसलिए आए हैं कि हमने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की महान शक्ति के विषय में सुना है। हम लोगों ने वह भी सुना कि जो उसने किया, हम लोगों ने वो सब कुछ सुना जो उसने मिस्र में किया, और हम लोगों ने वह भी सुना कि उसने यरदन नदी के पूर्व दो अमोरी लोगों के राजाओं को हराया, हेशबोन के राजा सिहोन और अश्तरोत के देश में बाशान के राजा ओग। ना इनको सारा कुछ पता था क्या क्या परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया, और ये यहोशू को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि ये पास से आए, ये अपनी दशा उन्हें दिखा रहे हैं, अपनी दशा दिखा के उन्हें बिलीव करवा रहे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि वो दूर से आए हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हमने परमेश्वर के बारे में, आपके परमेश्वर के बारे में सीखा है, इसलिए हमें शांति की संधि करनी है आपके साथ। हम आपके सेवक हैं और हम आपके साथ रहना मांगते हैं। कितना ज्यादा इन्होंने बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं कि हमने जो है दूर से आए हैं, हमारे कपड़े खराब है, हमारे गधे पे सामान भी पुराना हो गया, हमारी जो दाख मधु के जो वो है लेदर वाले चमड़े वाले वो भी पुराने, वो भी फटने वाले हैं। देखो हमें अब क्या है, आपके सहारे की जरूरत है। The fourth point is, unless you regularly consult God, you may be deceived by the flesh. We need to consult God at every moment of our life. And Joshua did not do that. Without talking to God, without consulting God, he made a peace treaty in the name of God. So our elders and all the inhabitants of our country spoke to us saying, take provisions in your hand for the journey.
Go to meet them and say to them, we are your servants. Now then make a covenant with us. This our bread was warm when we took it for our provisions out of our houses on the day that we left to come to you. But now, behold, it is dry and has become crumbled. And he says, this bread was warm. They showed those dry bread, hard bread to them. This bread was warm when we started our journey from our home. Now it has dried, it has crumbled, it has all mold and fungus. We cannot eat it. We want to be with you. He says, these wineskins which we filled were new. These wineskins were new. Now they have become old and torn. And then they say, our sandals are worn out. That means we have walked miles and miles together. If we were not walking, our sandals will not be worn out. So they are making them to believe because of the very long journey. They did not tell them from where they're coming. They only said, we are coming from a very far country. So the men of Israel took some of their provisions and did not ask for the counsel of the Lord. The biggest mistake which Joshua and his people did was they did not take counsel from God. Without taking counsel from God, they started talking to these men. They started believing what Gibeonites were doing, and Gibeonites were easily deceiving them, and they were deceived. Joshua made peace with them and made a covenant with them to let them live, and the leaders of the congregation swore an oath to them. The leaders made an oath. They said, let them live. They are coming from a far country. Their shoes are worn out. Their clothes are worn out. Their wineskins are torn out. And their donkeys are also looking very haggard. Let them live. And they made an oath. They said, okay, we will keep them here and they will be staying with us. We are making a peace treaty with them. So when we look at here, इसलिए हमारे नेताओं और हमारे लोगों ने हमसे कहा, अपनी यात्रा के लिए काफी भोजन ले लो. Now they say, our people told us to take enough food for yourself for the journey. जाओ और इसराइल के लोगों से बातें करो, उनसे कहो हम आपके सेवक हैं, हम लोगों के साथ शांति की संधि करो. जाओ और इसराइल के लोगों से बात करो. हमारे नेताओं ने बोला है कि वहां जाके शांति की संधि करो इजरायलियों के साथ. ये भोजन ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा. हमारी रोटियां देखो, जब हम लोगों ने घर छोड़ा तब ये गरम और ताजी थी. दैट मीन्स आवर फैमिली, वाइव्स, हमारी पत्नियों ने गरम गरम खाना दिया था, गरम गरम रोटी दी कि उस टाइम ये गरम थी जब हमने घर छोड़ा. अब आप देखते हैं कि सूखी और पुरानी हो गई है, क्योंकि काफी रोटियां हम लाए थे, जितनी हम खा सके हमने खा ली, बाकी सूख गई क्योंकि हमारे सफर बहुत लंबा था. हम लोगों के मशकों को देखिए जिसमें दाखमधु है. जब हम लोगों ने घर छोड़ा तो ये नई और दाखमधु से भरी हुई थी. मशक जिसमें पानी भरते हैं, और पहले भिश्ती होते थे जो कि मशक में पानी भर के घरों में देते थे पीने का या काम करने का, क्योंकि कुएं से पानी सब लोग नहीं निकाल पाते थे. तो मश्क जो थे, वो मश्की लोग, जो भिश्ती लोग थे, मशकों में पानी लेके घरों में सप्लाई करते थे पीने के लिए, बाकी वो कुएं से निकालते थे. तो यहाँ पे जो है इनके कह रहे हमारे मश्क को देखो, ये जब हमने इसमें दाखमधु भरा था तो नहीं थी, अब ये पुरानी हो गई है, ये फटने लगी है. उन्होंने उनको विश्वास करा दिया, देखो हम चीजें जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच हैं. और यहोशू और इजरायलियों ने उन चीजों के ऊपर विश्वास कर लिया, परमेश्वर से सलाह नहीं ली. हमारे कपड़ों चप्पलों को देखो, आप देख सकते हैं कि लंबी यात्रा ने हमारी चीजों को खराब कर दिया. ये नहीं बता रहे कितने दिन की यात्रा है, ये नहीं बता रहे कितना दूर से आए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि लंबी यात्रा ने हमारी चीजों को, जो हमने पहन रखी थी, जो हमने खाने के लिए सामान रखा था, जो हमारे गधों पे पानी दाखमधु था, सब खराब हो रहा है. हमारी यात्रा बहुत लंबी थी, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया कि वो आ कहां से रहे.
अगर वो सच बताते तो यहोशू उनको वहां पे नहीं आने देता, ना उसके साथ शांति की संधि करता। इज़राइल के लोग जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति क्या सच बोल रहा है, इसलिए उन्होंने रोटियों को चखा, किंतु उन्होंने यहोवा से नहीं पूछा। उनकी रोटियां चखी, लेकिन वो यहोवा से सलाह नहीं ली उन्हें क्या करना चाहिए। यहोशू उनके साथ शांति संधि करने के लिए तैयार हो गया। यहोवा को भूल गए। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। पिछली बार जो मैंने अपना संदेश दिया था वो झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता के बारे में दिया था। हम झूठी बातों को जल्दी सच मान के जो है हम उन पे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पे यहोशू ने झूठी बातों पे विश्वास किया, परमेश्वर से सलाह नहीं मांगी। जब हम झूठी बातों पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सलाह नहीं लेते, तो हमारे जो साथ जो है दुर्घटनाएं होने की संभावना हो जाती है। यहाँ पे यहोशू ने शांति का संदेह किया, लेकिन उन्होंने यहोवा से नहीं पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि परमेश्वर, क्या ये लोग जो बोल रहे ये सच है? अगर वो परमेश्वर से सलाह लेते तो उनकी चापलूसी में नहीं आते। अगर वो परमेश्वर से सलाह लेते तो वो उनको वहां नहीं रहने देते, ना उनकी शांति की संधि होती। लेकिन परमेश्वर से जब सलाह नहीं ली और वो तैयार हो गए, उनके साथ शांति की संधि कर ली, और ये इस्राएल के प्रमुखों ने यहोशू के वचन का समर्थन किया, क्योंकि यहोशू लीडर था इन इसराइलियों का। इसलिए जो यहोशू ने बोला, इसराइलियों ने उसको मान लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लीडर के ऊपर देखते हैं कि, और लीडर जो है गलत डिसीजन जब लेता है तो नुकसान हमारा ही होता है। When a leader takes wrong decision, when he is taken up, he doesn't takes counsel from God. We are deceived by the false appearance of people like Gibeonites. Number 5, many who walk by sight will cause divisions in the body of Christ. Now, these people were coming here, they were trying to cause division among themselves and Joshua and Israelites. It came about at the end of 3 days after they had made a covenant with them that they heard that they were neighbors and that they were living within their land. Then the sons of Israel set out and came to their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, Shephirah, Beroth, Kiriath-jearim. The sons of Israel did not strike them because the leaders of the congregation had sworn to them by the Lord, the God of Israel, and the whole congregation grumbled against the leaders. Now you can see the whole congregation is in chaos. They didn't know what to do, how to punish these people. These people have deceived them by putting a false appearance. The Israelites were not happy, but they had to abide by the leaders of the congregation of Israelites. They had to obey them. They had to do what they were saying. And they said they could not punish them. These people were coming from a very close by, Gibeon, Shephirah, Beroth, Kiriath-jearim. They're very close by. And they said they were upset with the leaders. Sometimes, leaders do such kind of a mistakes where the general public has to suffer. When we look at here, the Israelites were not happy about the decision taken by the leaders of the congregation of Israelites. They were not happy. They were grumbling against the leaders. Why? Because these Gibeonites had entered into their territory by false deception, by false appearance. That is why the Israelites were upset. They were upset because they did not consult God. They did not take counsel from God. Had they taken counsel from God, these Gibeonites would not be there. They would have just killed and chased them away. But that never happened. They came by the false appearance. They stayed with them. And Joshua allowed them because he had taken the oath in the name of God. So see how we are deceived by Satan. 3 दिन बाद इज़राइल के लोगों को पता चला कि वे लोग उनके डेरे के बहुत करीब रह रहे हैं।
इसलिए इसराइल के लोग वहां गए जहां वे लोग रहते थे। तीसरे दिन इसराइल के लोग गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यातरिम नगरों को आए, किंतु इसराइल की सेना ने इन नगरों के विरुद्ध लड़ने का प्रयत्न नहीं किया। वे उन लोगों के साथ शांति संधि कर चुके थे। उन्होंने उन लोगों के साथ इसराइल के परमेश्वर यहोवा के सामने प्रतिज्ञा की थी। अब क्या हुआ, इन लोगों ने ये 3 दिन में उन्हें पता लग गया, वो गए, उन्हें पता लगा कि ये पास के ही शहरों से आए हैं, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते थे, वो उनसे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के नाम से उन्होंने संधि कर ली थी, इसलिए वो उनको मार नहीं सकते थे। इसलिए इसलिए जो है, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के सामने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, उन्हें वहीं पे रहना था, क्योंकि उन्होंने शांति की संधि कर रखी थी। इज़राइल के जो नेता जो थे, यहोशू, हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से, छठा पॉइंट यहाँ में बता रहा है, टू लर्न टू वॉक बाय फेथ यू मस्ट ऑल्सो हम्बल योरसेल्फ। वी नीड टू वॉक बाय फेथ एंड वी नीड टू हम्बल आवरसेल्फ. We need to, and that is only possible when we are seeking God. But all the leaders said to the whole congregation, we have sworn to them by the Lord, the God of Israel, and now we cannot touch them. This we will do to them, even let them live, so that wrath will not be upon us for the oath which we have sworn to them. The leaders said to them, let them live. So they became hewers of wood and drawers of water for the whole congregation, just as the leaders had spoken to them. Okay, Joshua 9:19-21. Now, they could not fight with them because there was a treaty of peace in the name of God. They had taken oath. Secondly, they could not fight with them. If they fight with them, God is going to be angry with them. So Joshua said, let them live here. Let them serve as a slave. They have to cut the wood and they have to carry water for the whole congregation of Israel. So this was what Joshua had decided for them. When we look at here, किंतु प्रमुखों ने उत्तर दिया, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, हम लोगों ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सामने प्रतिज्ञा की है, हम उनके विरुद्ध अब लड़ नहीं सकते। हम लोगों को केवल इतना ही करना चाहिए कि हम उन्हें जीवित अवश्य रहने दें, हम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके साथ की गई प्रतिज्ञा को तोड़ने पर यहोवा का क्रोध हम लोगों के विरुद्ध होगा। इसलिए इन्हें जीवित रहने दो, ये हमारे सेवक होंगे, वे हमारे लिए लकड़ियां काटेंगे और हम सबके लिए पानी लाएंगे। इस प्रकार प्रमुखों ने इन लोगों के साथ की गई अपनी शांति संधि को नहीं तोड़ा। अब इन्होंने अपनी शांति की संधि को नहीं तोड़ा। इन्हें पता लग गया कि ये पास के ही लोग हैं, ये इनसे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि संधि जो शांति की हुई थी उसमें जो है प्रतिज्ञा के मुताबिक इन्हें इनके विरुद्ध नहीं लड़ना था। और यहोशू और उनके नेताओं ने कहा, ये यहाँ पे रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन हमारे लिए पानी भरेंगे और ये लकड़ी काट के हमें आग खाना पकाने के लिए लकड़ी भी काट के लाएंगे हमारे घरों के लिए। जितनी लकड़ी हमें चाहिए इन्हें काटनी पड़ेगी, ये यहाँ पे गुलाम बन के रहेंगे, हम संधि नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से गिबोनियों को वहां पे मौका मिला रहने का। हम यहाँ देख रहे हैं कि many who walk by sight and not by faith will be cursed. Okay, many who walk by sight and not by faith will be cursed. Now we have to walk by faith also. We are walking by sight, we have to walk by faith also, then only we'll be blessed. I said, then Joshua called for them and spoke to them, saying, why have you deceived us, saying, we are very far from you, when you are living within our land? Now therefore you are cursed, and you shall never cease being slave, both hewers of wood and drawers of water for the house of my God. So they answered Joshua and said, because it was certainly told your servants that the Lord your God had commanded his servant Moses to give you all the land and to destroy all the inhabitants of the land before you. Therefore we feared greatly for our lives because of you,
and have done this thing. Now behold, we are in your hand. Do as it seemed good and right in your sight to do so. Thus he did to them and delivered them from the hands of the sons of Israel, and they did not kill them. But Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for the congregation and for the altars of the Lord to this day in the place he would choose. Now he says, okay, we cannot curse you. We cannot, the curse is upon you for your false appearance to us. And you will be cutting wood and you will be drawing water for the whole congregation of Israel. That is the curse. We will not kill you. He told the Israelites not to kill them because of the oath and the peace treaty which he had signed. So he says, we will not kill them. They will stay here. They will remain forever as servants and slaves to Israelites. This is how these Gibeonites were punished for putting a false appearance here before Joshua and his congregation. Now, when we look at here, यहोशू ने गिबोनी लोगों को बुलाया, उसने कहा, तुम लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारे प्रदेश हमारे लोगों के डेरे के पास था, किंतु तुम लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत दूर देश के हैं। अब तुम्हारे लोगों को बहुत कष्ट होगा, तुम्हारे सभी लोग दास होंगे, उन्हें परमेश्वर के निवास के लिए लकड़ी काटनी और पानी लाना होगा। गिबोनी लोगों ने उत्तर दिया, हम लोगों ने आपसे झूठ बोला क्योंकि हम लोगों को डर था कहीं आप हमें मार ना डालें। हम लोगों ने सुना है कि परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को यह आदेश दिया था कि वे तुम्हें ये सारा प्रदेश दे दे, और परमेश्वर ने तुमसे उस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मार डालने के लिए कहा। यही कारण है कि हम लोगों ने आपसे झूठ बोला। अब हम आपके सेवक हैं, आप हमारे उपयोग जैसा ठीक समझे कर सकते हैं। इस प्रकार गिबोन के लोग दास हो गए, किंतु यहोशू ने उनका जीवन बचाया। यहोशू ने इसराइल के लोगों को उन्हें मारने नहीं दिया। यहोशू ने गिबोन के लोगों को इसराइल के लोगों का दास बना दिया। इसराइल के लोगों यहोवा के चुने हुए जिस किसी स्थान की वेदी के लिए लकड़ी काटते और पानी लाते थे, वे लोग अब तक दास हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहोशू ने बोला, जब परमेश्वर की बलि के लिए हम ऑल्टर बनाएंगे, ओके, स्थान बनाएंगे, तो हमें लकड़ी काट के लानी पड़ेगी, या किसी भी काम के लिए हमें लकड़ी की जरूरत है, तुम्हें इसराइलियों के लिए लानी पड़ेगी, क्योंकि तुम दास बन के रहोगे और तुम्हें इसराइलियों के लिए पानी भी लाना पड़ेगा। तुम जब तक यहाँ पे हो, तुम दास बन के रहोगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। इसराइलियों को उन्होंने बोल दिया, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तुम डर रहे थे कि हम तुम्हें जो है मार देंगे, इसलिए तुमने ऐसा काम किया, लेकिन हम जो है तुम्हारे साथ शांति से हमने तुमसे समझौता किया है, तो तुम, लेकिन ये दास जो है, ये तुम्हारे पे एक श्राप है जो दास बन के तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो कर्ज हमारे ऊपर आ जाती है, जैसे कि इनके ऊपर कर्ज आई। हम देखते हैं यहूदा के ऊपर जो है, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और अपने आप ही उसने फांसी लगा ली। वो कर्ज थी उसके लिए। जब हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हम गड्ढा खोदते हैं, हम उसमें गिर जाते हैं। जब यहोशू परमेश्वर का दास था, उसने इनके साथ शांति की वार्ता संधि करके इनको मारने नहीं दिया, इनको सजा दी कि तुम दास बन के रहोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को धोखा दें। हम अपना अपीयरेंस चेंज करें, अपने कपड़े चेंज करें, अपने खाने पीने की चीजों को चेंज करें, जैसे कि उन्होंने बोला दूर से आए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से हमें बोलता है कि आप सावधान रहो। We need to be careful, and God tells us not to listen to this. Always take counsel from God. When we take counsel from God, we will not be deceived by people like Gibeon. हम परमेश्वर के साथ अगर हम वफादारी से उससे प्रार्थना में उसकी सहायता मांगते हैं, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हमेशा ये याद रखिए कि धोखा जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। परमेश्वर
खुश होता है जब हम वफादारी से उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब हम लोगों को धोखा देते हैं तो हमारे ऊपर श्राप पड़ जाता है और परमेश्वर हमें सजा देता है। इसलिए भाई और बहनों, हमेशा याद रखो कि धोखा जो है परमेश्वर के लिए नहीं अच्छा, परमेश्वर के लोगों के लिए धोखा देना अच्छा नहीं है। Deceiving God's people, and God's people have to be very careful. They need to seek counsel from God. Every now and then, when they have a doubt of anything, such thing happening like Gibeon coming here, Gibeonites, and deceiving Joshua, when such things happen to us, we are living in the last days. आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं। आखिरी दिनों में रह के लोग हमारे लिए ऐसा ही काम कर रहे हैं, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो धोखा जो है, हम परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो हम आसानी से हम धोखा नहीं खा सकते। परमेश्वर हमें जो है बना के रखेगा। परमेश्वर जो है हमें ऐसे धोखों से चेतावनी देगा। अगर यहोशू भी परमेश्वर की काउंसिल लेता तो उसको चेतावनी मिल जाती और ये गिबनाइट्स उनको धोखा नहीं देते। If Joshua has consulted God, he wouldn't have been deceived by these Gibeonites. Be very vigilant. That's what God tells us in the last days. Be very close to God. Have faith in God. Keep praying to God. Keep asking advice from God by reading the Word of God, the Bible that is given to us. God bless you as we go and prepare another message for you. God bless you.